Good morning, friends. Today we are going to continue with communication. In the previous lecture, I told you that effective communication is very important in order to leave a mark in any sector. Whether you are working in an organization, whether you are talking among the friends, or whether there is, you have been asked to speak on certain topic in your society, or you are an author or a writer or a musician. What is very important is you should have an effective communication style. If the communication is poor, then it's not going to work out. You're not able to put a sufficient impression on the other party. तो क्या चीज जरूरी है कि आपके पास effective communication style चाहिए. तो yesterday we have covered with a process of communication, types of communication, that we are going to revise once again and we are going to move further. So on your screen you can refer that last time I told you that communication has been derived from a Latin word that is communicare, or communicare का meaning क्या है to share the ideas, to exchange the ideas, feeling, that is known as a communication. So what it has been given, communication is an essential part of everyday life. People communicate with one another to share ideas, express thoughts and feelings, and resolve problems. You should have an effective communication. If the communication style is effective, whether it is a verbal communication, whether it is a non-verbal communication, every style should be effective. If the communication style is very effective, then it's a solution to every problem. Whatever is a problem, but you have a effective communication style, so all the problems will be solved with that effective communication. Now, process of communication, you have one sender and one is a receiver. Sender will send a message using certain channels. Channels में क्या क्या रहेंगे? Channels can be either SMS, or it can be a WhatsApp or email or a letter. That is a channel for communication, and the message will be encoded in this particular channel. Encoding मैंने आप लोगों को बताया कि encoding may be in the form of words or in the form of certain hidden language, and it will be communicated to the other party. तो ये particular process होता है कि sender होता है, sender अपनी बात को, अपने message को through encoding, either through words और कुछ छुपे हुए वे में या hidden way में अपने particular message को hidden way में encode करके सामने वाले receiver तक पहुंचाता है. Using channels. What are the channels? You have different channels. You have a modern technology है, तो you have various channels. You have SMS, you have email, you have WhatsApp, there is a Facebook. There are n number of communication channels available. Earlier days, you have a few communication channels such as post you have, then telegram you have, where you have to send an immediate communication on account of death or certain there is immediate news to be transferred from one party to another. They used to use a trunk call or a telegram. That was an effective immediate communication style in the earlier days. Now the effective communication and fast communication is SMS. You have a WhatsApp, you have Facebook. These are the different modern communication style. These are the channels through which one party transfer the message to the other party. So you have a sender. Sender is a person who want to transmit the information, who want to send the information. That is a sender. He is going to encode the message. Encode is simple transferring the message by way of words, or it may be in the hidden language. It will be transferred from one party to the other. That is called as a encoding. So encoding can be in any particular language, or it can be in a hidden language. Then there is a message which is a heart of the communication. Then there is a receiver to whom the message is sent, जिसके लिए आपका message बनाया गया है, and he is going to decode that particular message. आप इस तरीके से मैसेज को ट्रांसफर करते हो आपके रिसीवर एंड पे कि वो पर्टिकुलर मैसेज को डिकोड करता है. यानी एनकोडिंग अगर है सिंपल लैंग्वेज में तो देयर इज नो नीड लाइक डिकोडिंग, बट हाउएवर इफ इट इज इन हिडन लैंग्वेज देन ही इज गोइंग टू डिकोड दैट पर्टिकुलर मैसेज.
Then he is going to send the response, that is a feedback you can call it as, and feedback will be again sent through the same channel or certain other channels. Now in order to carry out this entire procedure, there should not be any kind of a disturbance or hindrances or hurdle. That means अगर कोई hurdle है और hindrances है such as noise, अगर कोई noise है, आपका बात सुनाई नहीं दे रही है, तो then there is every possibility that he is going to give a wrong signal or he is going to miscommunicate, and if there is a miscommunication it's going to create a misunderstanding. तो आपको क्या देखना जरूरी है कि ये पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हर्डल नहीं चाहिए. अगर फेस टू फेस है तो देन यू हैव टू सी टू इट कि आप जो लैंग्वेज में सामने वाले से बात कर रहे हो तो वो लैंग्वेज वो सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. इन द सेम मैनर अगर कोई एक्सपर्ट है तो ही हैज टू सी टू इट दैट कि अगर वो किसी स्टूडेंट लेवल से बात कर रहा है तो ही शुड सी टू इट दैट कि वो उसकी लैंग्वेज को सॉफ्ट इनफ रखे, उसके लैंग्वेज को इतने हार्ड वर्ड्स यूज ना करे ताकि वो स्टूडेंट को समझ में ना आए. तो अगर फेस टू फेस है तो वहां पे हर्डल्स क्या हो सकता है कि लैंग्वेज बैरियर एक हर्डल हो सकता है, या फिर आपको देखना है कि अगर डिस्टेंस प्लेसेस पे अगर दो लोग हैं, एक रिसीवर और एक सेंडर आर इन डिस्टेंस प्लेसेस, तो बोथ द पार्टी हैज टू सी टू इट दैट के बीच में जो कम्युनिकेशन चैनल है वो कोई भी तरीके का हर्डल क्रिएट नहीं कर रहा है, नॉइस क्रिएट नहीं कर रहा है, ताकि सेंडर को अपनी बात बराबर तरीके से रिसीवर तक पहुंचाते आए, वहां पे कोई भी तरीके का हर्डल क्रिएट ना हो. तो दैट इज यू हैज टू सी टू इट दैट कि कोई भी तरीके का नॉइज ना हो, हिंड्रेंस ना हो, कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि उसकी बात बराबर तरीके से रिसीवर एंड तक पहुंचे. तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ communication. Now, what are the types of communication? Yesterday I told you that types of communication are divided on the basis of channel and on the basis of purpose. On the basis of channel, you have verbal communication, you have non-verbal communication, you have visual communication, then audio-visual communication. And in the similar manner, on the basis of purpose, you have a formal communication and informal communication. Once again, we'll revise this and see to it what is that. Types of communication, what they have given. Error occur when a communicated message is not given or received as intended. अगर आपकी बात as it is सामने वाले तक नहीं पहुंचती है तो then it's going to create a problem. जैसे कि you might have heard about Chinese whisper. Chinese whisper में क्या होता है कि एक जन दूसरे को बात कुछ बोलता है, वो दूसरा तीसरे को बात बोलता है, तीसरा चौथे को बोलता है, और लास्ट तक जब वो बात पहुंचती है तो वो बोला क्या था तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, बात कुछ और चले जाती है. दैट इज अ रूमर. तो इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, एंड जो आप बात बोलना चाहते हैं वही बात आपके रिसीवर तक पहुंचना चाहिए. और आपको ये एंश्योर करना पड़ेगा कि जो चैनल्स आप यूज कर रहे हो वो चैनल्स बराबर तरीके से काम कर रहा है. वो पर्टिकुलर चैनल्स, आई मीन इफ इट इज आप किसी पर्सन के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन किसी और को पहुंचा रहे हो तो आपको ये एंश्योर करना जरूरी है कि वो इंफॉर्मेशन वो पर्सन एज इट इज दूसरे पार्टी को पहुंचाता है. नहीं तो क्या होगा कि वहां पे एरर क्रिएट होगा, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होगा. यू कैन इंक्रीज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बाय डेवलपिंग वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल कम्युनिकेशन स्किल. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कम्युनिकेशन स्टाइल you should have all these skills. आपके पास verbal communication skill होना चाहिए, non-verbal communication. Yesterday we have seen कि body language, then there is a aesthetic way of communication, your appearances. अगर आप facts और figures use कर रहे हो, आप pie chart वगैरह use कर रहे हो, तो you will have to ensure to it that कि आप आपके verbal and in the same manner non-verbal communication आप किस तरीके से effectively उसको utilize कर रहे हैं in order to you promote the communication skill. Based on the purpose and style, communication is further categorized into formal and informal. तो दो चीज बोला था मैंने आपको कि एक on the basis of channel और दूसरा on the basis of purpose. On the basis of channel you have verbal,
you have non-verbal, you have visual, you have audio visual. These are what on the basis of channels you have. और उसके अलावा पर्पज में this will be generally utilized in the case of an organization. You have a formal communication and informal communication. ये दो टाइप के communication you will have on the basis of purpose. बराबर. Now what is a verbal communication? What is a verbal communication? You have verbal communication entails the use of words. तो verbal communication दो टाइप. verbal communication में by way of writing you will try to communicate, or orally you will try to communicate by words. तो verbal communication is most effective way of communication. आप जब आप communicate करते हैं, आपका verbal communication अगर है तो उसके अंदर आपको ये देखना है, अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आपका यू शुड हैव अ थरो नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट फॉर विच यू आर टॉकिंग. इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू दैट कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश स्टाइल जो है या इंग्लिश पे कमांड ज़रूरी है तो ये आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल बोला जाएगा. ये ज़रूरी नहीं है. आप कोई भी लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हो, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज हिंदी, वेदर इट इज संस्कृत और एनी अदर लैंग्वेज, you should see to it that you should have a proper command. You should properly utilize the grammar, syntax. जो भी लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हो वो बराबर तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए. जब भी जाके आपका अगर वो कमांड पे लैंग्वेज अगर वो लैंग्वेज पे अगर कमांड अगर बराबर है तो देन यू हैव अ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन. आप देखते होंगे कि देर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल. द वे दे स्पीक, आप उसी में मैस्मराइज हो जाते हो. जब सामने वाला बोलता है तो यू फील दैट कि ये आप ही है और आपको लगता है कि ये ज़बरदस्त बोल रहा है. और आप, मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी, नरेंद्र मोदी जी, you can see to it that why he is so famous, why he is so, I mean, people like him, why the people love him is only because of his effective verbal communication style. The way he speaks, जिस तरीके से वो बोलते हैं तो उससे लोग क्या होते हैं, उनके पीछे दौड़े चले आते हैं. तो people should have effective verbal communication style. तो ये तो हुई ओरल कम्युनिकेशन की बात. इन द सेम मैनर राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल भी आपके इफेक्टिव होना चाहिए. जैसे कि अभी एग्जामिनेशन की अगर बात करते तो एग्जामिनर इज नॉट अवेयर हु यू आर, तो हाउ ही इज गोइंग टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर राइटिंग स्किल्स. अगर आप जिस तरीके से आपके स्किल्स को पेपर पे ब्रॉट डाउन करेंगे, आपके लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को, अभी यहाँ तो इंग्लिश की बात हो रही है तो आप आपके इंग्लिश लैंग्वेज को जिस तरीके से आपके पेपर पे यू आर गोइंग टू पुट डाउन, that is going to give the impression on the examiner. He is going to understand on the basis of your writing skills कि आपके writing skills. तो यहाँ पे verbal communication में they are covering two types of communication. One is a written and one is a oral communication. So you can see on your screen that के why do you need a good verbal communication? Why there is a need? क्योंकि verbal communication के basis पे आप किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, आप कितना नॉलेज आप में इन डेप्थ है और आप वो उसी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज को आप किस तरीके से आपके थ्रू वर्ड्स आप बता रहे हो सामने वाले को, आइदर ओरली और बाय वे ऑफ राइटिंग. That's going to create a support for you. आपके ऊपर उसका impression create करेगा और in the same manner एक trust create करेगा कि ये बंदा जो है ये knowledgeable है और इस पे अपन भरोसा कर सकते हो. It builds trust between the people resulting in long-term relation. तो this is an advantage of verbal communication. Non-verbal communication में the best example I have given about, यहाँ पे आप अगर देखते होंगे तो यहाँ पे ट्रम्प अगर आपको दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प, तो यहाँ पे this is the best example you have is just because you can see that के हर इस person के body language, facial expressions अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो you can see to it के अलग अलग expression that is giving you
अलग अलग कम्युनिकेशन जनरेट कर रहा है। अगर आप देखते होंगे, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लियरली बता रहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट इज वेरी एंग्री ऑन समवन, और यहाँ पे आप देखोगे तो यू कैन सी टू इट कि ही इज वेरी हैप्पी, या फिर उनका सिचुएशन इज क्वाइट गुड इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब चीजें कवर होती है कि आप का बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से, आप किस तरीके से हैंडशेक करते हो, आप किस तरीके से सामने वाले के बोलने पे आप किस तरीके से आपके एक्सप्रेशंस दे रहे हो। तो दैट एक्सप्रेशंस इज आल्सो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप हैंडशेक किस तरीके से करते हो, आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो तो हाउ यू ड्रेस अप, आपका ड्रेसिंग सेंस भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। द वे यू ड्रेस अप दैट इज गोइंग टू जनरेट योर कम्युनिकेशन स्टाइल के हाउ दिस पर्सन इज। आप उसके ड्रेसिंग सेंस पे से आप उसका एक इम्प्रेशन तैयार कर लेते हो कि ये पर्सन किस तरीके का होगा, ऑर्गेनाइज है या शैबी है। तो दैट इज ऑल कवर्ड अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is also equally important as verbal communication। जिस तरीके से verbal communication important है, उसके साथ साथ non verbal communication भी important है। non verbal communication इसीलिए important है कि जब सामने वाला पर्सन तो बोलेगा बाद में, लेकिन उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर कब पड़ेगा, उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी उसके वो किस तरीके से दिखता है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो दैट पर्टिकुलर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका पहला कम्युनिकेशन वे रहेगा। उससे आप जनरेट करोगे, आपसे आप कंक्लूजन निकालोगे कि वो सामने वाला पर्सन किस तरीके का है। बोलेगा तो बाद में। तो फर्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम इनटू पिक्चर एंड देन वर्बल कम्युनिकेशन कम इनटू पिक्चर। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव कवर्ड यस्टरडे। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट अ बॉडी लैंग्वेज। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट कि बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि सामने वाला पर्सन का बॉडी लैंग्वेज इज अ स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, कि पर्सन किस तरीके से मुस्कुराता है, किस तरीके से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस है, उसके आईज के एक्सप्रेशंस है, उसका हैंडशेक का तरीका क्या है, वो किस तरीके से बैठता है। अगर आप डाइनिंग टेबल पे भी देखेंगे कि देयर आर रूल्स ऑफ सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल। इट हैज बीन, दिस इज गोइंग टू कवर फर्दर इन योर GMCS कोर्स, कि देयर इज आल्सो अ स्टाइल ऑफ सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, देयर आर रूल्स ऑफ सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल। तो दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, बराबर, कि आपके बॉडी लैंग्वेज बताता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हो। देन देयर इज अ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज व्हाट, कि क्या बात बोल रहे हो उससे ज्यादा आप वो बात को किस तरीके से बोल रहे हो, हाउ यू आर स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरा लैंग्वेज में ये कवर होता है कि आप जो बता रहे हो, जो बात बता रहे हो, वो बात क्या है उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से उस बात को बता रहे हो। आप बोलते हो ना कि पोलाइटली बोलने से सभी बात बन जाती है। अपने एल्डर्स अपने को समझाते हैं कि आप आहिस्ता बोलिए, काइंडली बोलिए, पोलाइटली बोलिए, तो आपकी हर बात को सामने वाला मानेगा। तो दैट इज व्हाट इज कवर्ड अंडर द पैरा लैंग्वेज, कि हाउ politely you are speaking, how kindly you are speaking to the, you should understand you should try to have an empathy and you should try to put your leg in his shoes। सामने वाले के शूज में आप अपना पाँव डाल के समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला कौन सी सिचुएशन में, और फिर उस तरीके से बात करिए, तो आप आपकी बात को बेहतर तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाट इज कवर्ड अंडर द पैरा लैंग्वेज। Then there is a aesthetic way of communication। Aesthetic is generally a type of symbols, religion, that is कि म्यूजिक है, डांसिंग है, स्कल्पचर है, तो ये भी एक पेंटिंग है, ड्राइंग्स है। These are also a way of communication। कि टैलेंटेड जो होते हैं, जैसे म्यूजिशियन है, अपन बोलते हैं ना, जब वो म्यूजिशियन अपने को एक सुकून मिलता है, तो म्यूजिशियन भी एक बात को कम्युनिकेट करता है अपने म्यूजिक के थ्रू। पेंटर है, तो पेंटर पेंटिंग के द्वारा कम्युनिकेट करना चाहता है अपने रिसीवर को।
कि वो क्या बात बोलना चाहता है, तो उसके पेंटिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेंटर किस बात को कम्युनिकेट करना चाहता है। तो दैट इज व्हाट इज अ स्टैटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। Then appearance, I told you, appearance is also one part of non-verbal communication. Appearance is, आप बोलते हो ना, first impression is a last impression. That's the reason whenever you go for an interview, you should properly dress up. Your hair should be properly combed, so that is going to give the first impression on the interviewer. कि सामने वाला जो है, जो इंटरव्यू आपका लेने वाला है, उस पे आपका पहला इंप्रेशन वही पड़ने वाला है। बोलेंगे तो बाद में, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, आंसर तो आप बाद में दोगे, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपके अपीयरेंस करेगा। तो दैट्स द रीजन अपीयरेंस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यू शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली ड्रेस, यू शुड नॉट बी सेबी, यू शुड नॉट बी सॉडी। जनरली होता है ना कि आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए। आप ऐसी उठ के अगर क्लास में आ गए, ऑर्गेनाइजेशन काम जा कर रहे हो, वहां पे चले गए, तो दैट्स नॉट गोइंग टू गिव अ इफेक्टिव इंप्रेशन ऑन द अदर पार्टी। तो आप जब भी देखते होंगे होटल में, आप देखते होंगे कि होटल के रिसेप्शनिस्ट आर वेल ड्रेस। वाई दे आर वेल ड्रेस? होटल के रिसेप्शनिस्ट आर ऑलवेज वेल ड्रेस। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू कैन सी दैट रिसेप्शनिस्ट पे जनरली लेडी होती है और शी इज ऑलवेज वेल ड्रेस। वाई इट इज सो? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो पहला पर्सन रहता है जिससे आउटसाइडर कम्युनिकेट करता है। तो वो आउटसाइडर को, अगर वो रिसेप्शनिस्ट जो है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन इज वेल ड्रेस्ड, तो दैट इज गोइंग टू गिव द इम्प्रेशन अबाउट दैट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट के अपीयरेंस आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, एंड इट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। देन यू हैव अ सिम्बॉल्स। Generally, symbols is also communication, generally used in the religious sector. आप देखते हैं कि रिलीजन में देयर इज अ सिंबल, वो सिग्निफाई करता है कि ये पर्टिकुलर कौन सा रिलीजन है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो ईगो को भी सिंबलाइज करता है, जैसे कि सिंबल मैंने बोला था पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पे जनरली देयर में बी स्टार्स। तो दैट इज अ सिंबल दैट इज गोइंग टू जनरेट, दैट इज गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू दैट के उसके कितने, उसने अपने लाइफ में या अपने कैरियर के अंदर उसने कितने अचीवमेंट हासिल किए। तो दैट इज सिंबल इज ऑल्सो अ वन वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन थर्ड you have a visual communication. Visual communication is also very important. Visual communication जनरली ऐसा बोला जाता है कि विजुअल्स जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, क्योंकि एक बार आप विजुअल्स देख लेते हो तो वो आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर विजुअल्स बैठ जाते हैं। जनरली आप ड्राइविंग पे जाते हो तो यू कैन सी दैट कि यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ सिंबल्स ड्यूरिंग जर्नी। तो वो सिंबल्स आपके दिमाग में एक फिट हो जाते हैं कि ये तो उससे आपको याद रहता है। तो विजुअल्स आर ऑल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो विजुअल थ्रू आप कोई भी तरीके का, आप सपोज यू आर अ राइटर, तो थ्रू राइटिंग आप विजुअल्स को अगर आपके राइटिंग स्टाइल के साथ मिक्सअप करते हो तो देन इट्स गोइंग टू गिव अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इकोनॉमिस्ट, तो दैट इकोनॉमिस्ट इज जनरली गोइंग टू अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनिंग समथिंग इज गोइंग टू यूज सर्टन चार्ट्स। तो पाई चार्ट्स रहेंगे, वो रहेंगे, तो वो चार्ट्स और विजुअल्स, तो वो विजुअल से आपका राइटिंग स्किल्स इंक्रीज होगा और आप इफेक्टिवली आपकी बात रीडर्स तक कम्युनिकेट कर पाओगे। तो विजुअल्स आर ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो व्हाट इट हैज बीन गिवन, communication through visual aids such as signs, topography, drawing, graphic design, illustration, color, etc. are important part of communication. You can see this, ये सब चीजें जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिया है, ये सब क्या है, विजुअल्स है। जो ये विजुअल्स आपको ध्यान में रहते हैं और इससे याद रहता है कि सामने वाला क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। You can see this कि this particular person is smiling, तो that is I am feeling fine. The person has to say something, he liked it, I don't like it, I need a help. These are different visuals you will find in different organization या different sectors, और वो visuals आपको communicate करते हैं कि वो सामने वाला क्या बात करना चाहता है। बराबर। वॉशरूम्स के बाहर विजुअल्स रखे हुए रहते, ही और शी के विजुअल्स रहते, तो दैट इज व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट। देयर कैन नॉट बी अ पर्सन स्टैंडिंग एंड ही कैन गाइड यू
कि यहाँ गर्ल्स है, यहाँ पे बॉयज के लिए ये वॉशरूम है, वहां पे एक विजुअल्स रहता है, एंड दैट विजुअल्स इज ऑल्सो a style of communication. Then there is on the basis of purpose, you have two communication again. One is a formal communication and one is a informal communication. Formal communication क्या रहता है? Formal communication generally formal कौन सी चीज में रहेगा? जहां पे आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. Formal communication, there are three types of communication. One is a vertical communication, one is a horizontal communication and one is a diagonal communication. तो उसका नाम ही फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्योंकि वहां पे फॉर्मेलिटी है, आपको वो फॉर्मेलिटी फॉलो करनी है. तो फॉर्मेलिटी कहाँ पे रहेंगी? जनरली इन द केस जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, और रूल्स एंड रेगुलेशन जनरली कहाँ पे रहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज जनरली रिलेटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे यू आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन या देर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन. जनरली व्हेन यू टॉक विथ योर फ्रेंड्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी गॉसिप कर रहा है, तो दिस गॉसिपिंग इज कॉल्ड एज एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. व्हाट इट हैज बीन सेड, formal communication, both oral written, follows certain rules, principle, conventions. Convention is also a principle, that is regulations. In conveying the message, the communication pattern can be vertical, horizontal or diagonal. Vertical, from topper to junior, that is from the superior to employees, manager to employees, employees to manager. This is a vertical communication. Horizontal communication, two people in the same department talking to each other, is a horizontal style of communication. Diagonal communication, any person from any department can talk to any person at any level, that is called as a diagonal communication. एक particular employee of X department can talk to the head of the department of Y department के head से X department का employee बात कर सकता है. तो this is called as a diagonal communication. Then there is a informal communication. Informal, as the name implies, no rules. It is informal. आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करने, रूल्स को आप ब्रेक कर रहे हो, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. जनरली फैमिली फ्रेंड्स के अंदर देयर इज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. It is a casual, friendly and unofficial type of a communication. This type of communication is between family, friends and other social relation without confirming the official rules and process. So these are the different informal communication. Then कम्युनिकेशन नेटवर्क डिजाइन होते हैं. नेटवर्क डिजाइन यानी कम्युनिकेशन, किसको कौन सी बात किसको कम्युनिकेट करनी है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क. जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है एक नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है कि उसके थ्रू ही आपको काम करना है. सर्टन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ रिजिड पैटर्न, सर्टन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फ्लेक्सिबल पैटर्न. रिजिड पैटर्न के अंदर एक्स Y को ही रिपोर्ट करेगा अगर उस तरीके से उसका डिजाइन किया गया है. X डायरेक्ट Z को रिपोर्ट नहीं कर सकता है. X has to first go to Y. That particular report from Y will go to Z. X cannot report directly to it. That is a pattern. In certain organization, there is a flexible way of communication, flexible network you have, where X can directly communicate to Z or Z can directly communicate with X. Then there is no specific pattern, like there is a free flow of information, free flow of communication network. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क रहेगा. तो व्हाट इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क? द पैटर्न ऑफ कॉन्टैक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन among them is a communication network. So in an organization there are various people who work. So you have to, if you have to increase the productivity in an organization, if you want to increase the profitability of an organization, then the communication network should be very effective. If the communication pattern or communication network is not effective, then that organization is going to suffer a lot. It will be, if the organization has to move further, so in the start itself, or they have to, if they feel that where we are lacking,
तो दे हैव टू रीडिजाइन देयर कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सी टू इट दैट के काम बराबर तरीके से हो रहा हो। जैसे कि अभी आप देखोगे तो यू कैन सी दैट के देयर आर वर्क फ्रॉम होम है, तो दिस इज व्हाट इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। वर्क फ्रॉम होम है तो हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू होम, दैट हैज बीन डिजाइन एंड अकॉर्डिंगली आपको कम्युनिकेट किया जाता है कि आप ये काम करोगे और आप किसको कम्युनिकेट करेंगे। तो डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपका कम्युनिकेशन पैटर्न हैज टू बी डिजाइन बाय द सुपीरियर्स so that the productivity and profitability of that particular organization increases. So there are different types of communication network. First is a vertical communication. You have vertical communication में I told you that के manager is going to जो है वो manager अपनी बात अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचाएगा, अपने पॉलिसीज को अपने एम्प्लॉय तक पहुंचाएगा और एम्प्लॉयज उस पॉलिसीज पे फीडबैक, अपना रिएक्शन डायरेक्टली मैनेजर को देंगे। तो मैनेजर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू मैनेजर विल बी कॉल्ड एज अ वर्टिकल नेटवर्क। यू कैन सी ओवर हियर, दिस यू हैव। देन यू हैव अ सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क में यू हैव के employees of one of the organization at the same level talking to each other, एक अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है, उसका फीडबैक वो सामने वाले को दे रहा है, तो that is called as a circuit network or you can call it as a closed network. Then you have a chain network. Chain network में there is a chain of command flowing from higher authority to the lower authority और उसके बीच में sectors रहेंगे, primary sector, secondary sector, tertiary sector। जैसे कि अगर CEO of an organization is not directly going to communicate with the employees, there are n number of person in the middle of that is a primary sector। वो अपनी information manager तक देगा, manager के हाथ के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको information पास करेगा, वो आगे के एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन पास करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ चेन नेटवर्क, दैट इज अ चेन ऑफ कमांड फ्लोइंग फ्रॉम द अपर सेक्टर टू द लोअर सेक्टर। Then there is a wheel network. The wheel network or a spoke network is like a wheel. और ये जनरली जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ यूजफुल नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर, ये नेटवर्क के अंदर देयर इज अ सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग, यानी सभी लोग एक ही पर्सन को रिपोर्ट करेंगे। जनरली प्रमोटर, ओनर जो है या प्रेसिडेंट जो है उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। तो सभी लोग, वेदर देयर इज अ सेल्स मैनेजर, वेदर देयर इज अ purchase manager, marketing head, everyone, employees directly going to report to one person. So that is called as a centralized reporting and it is called as a wheel network. This will be generally useful in small organization, larger organization के लिए useful नहीं है। Then you have a star network. Star network is a free flow of information, free flow of communication from one person. कोई किससे भी बात कर सकता है। A डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज B डिपार्टमेंट के हेड से बात कर सकते हैं, B डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज से बात करते हैं। तो that is a free flow of communication, free flow of information is known as a star network. So these were things which we have covered in the previous lecture. Then next topic of study is the characteristics of effective communication. Now, in order to make your communication effective, what is very very important? तो first thing वो क्या बोल रहा है कि आप जो भी communicate करना चाहते हो तो वहां पे there has to be clarity, clear, मैसेज क्लियर होना चाहिए, रिडंडेंट नहीं चाहिए या फिर एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए। एम्बिग्यूटी का मीनिंग है कि आप अननेसेसरी वर्ड्स यूज कर रहे हो और आप जो बताना चाहते हो वो क्लियर नहीं है, वो अनक्लियर है। तो इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो इजी होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। डोंट ट्राई टू यूज unnecessarily long words or bigger words or if you feel that के मैं अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा वोकैबुलरी यूज कर रहा हूँ, आप डिक्शनरी के टफर वर्ड्स यूज कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप रिसीवर एंड पे जो बैठा है वो एक सीधा साधारण आदमी है। तो आप जो नो डाउट योर एंटायर आपका वर्बल कम्युनिकेशन में बी वेरी वेरी इफेक्टिव फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट टू द रिसीवर वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके वर्ड्स बल्कि थे जो सामने वाले के समझ में नहीं आए। जैसे कि अगर एग्जांपल बोलूं तो शशि थरूर
एंड ही हिमसेल्फ इज वन डिक्शनरी। अगर आप उससे बात करोगे और उसके आप लेक्चर यूट्यूब पे या फिर गूगल्स पे अगर देखते हो तो यू विल सी टू इट के ही यूज अ हैवी बल्की वर्ड्स। तो दो ही मे बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वेरी आई मीन he has a perfect command over the language, he has a perfect grammar, but the thing is अगर मैं I am a listener then उसके जितने एक्सपर्ट मुझे होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब चीजों से इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्लियर होना चाहिए, आप जो बताना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द clarity is an important part of effective communication. Then there is a conciseness. What is a conciseness? Conciseness का meaning है preciseness, precise brevity. यानी don't use extra unnecessary paragraphs, unnecessary sentence. जो है वो concise, keep it very very simple. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, रिडंडेशन नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज को बार बार आप यूज कर रहे हो, तो वो रिडंडेशन रिपीटेशन आपके कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्साइजनेस। देन देयर इज अ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मीनिंग क्या है कि in order to make your communication very effective, use facts and figures, and that facts and figures should be correct factor. I mean, कोई भी तरीके का वहां पे फेक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए। आप आपके कोई इकोनॉमिक्स के आप इंफॉर्मेशन अगर दे रहे हो तो उस इकोनॉमिक्स की इंफॉर्मेशन अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ या पाई चार्ट के साथ या फ्लो चार्ट के साथ अगर आप वो पर्टिकुलर चीज को कम्युनिकेट करते हो तो देन दैट इज गोइंग टू गिव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। तो दैट इज नोन एज कॉन्क्रीटनेस। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी यूज रादर देन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यूज ना करके आप कॉन्क्रीट चीज अगर यूज करते हो, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेरेंट यानी रिलेशन। आपके वर्ड में, आपके सेंटेंसेस में, आपके पैराग्राफ में एक फ्री फ्लो होना चाहिए, एक दूसरे से बराबर कनेक्शन होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेरेंट। एक चीज को ऊपर लिख रहे हो, फिर दूसरी चीज कुछ और चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर पहला जो आपने चीज एक्सप्लेन किया था उसका कंक्लूडिंग पार्ट फिर से लिख रहे हो, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं है। तो कोहेरेंट का मीनिंग क्या है कि बराबर फ्री फ्लो होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्शन चाहिए। आपके वर्ड, आपके सेंटेंसेस, आपके पैराग्राफ का एक दूसरे से बराबर अगर कोहेरेंस से कनेक्शन है तो दैट इज इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कोहेरेंट। देन देयर शुड बी कंप्लीटनेस। व्हाट इज एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंप्लीटनेस। कोई भी चीज अधूरी मत छोड़ो। अगर कोई चीज को आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो बात को पूरी रखो। अगर आप कोई चीज लिख के दे रहे हो तो इट शुड बी कंप्लीट, देयर शुड नॉट बी इनकम्प्लीटनेस। अगर कोई भी तरीके का इनकम्प्लीटनेस है या ओमिशन है या पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपने आपके मैसेज में नहीं दी तो सामने वाला उस मैसेज को किस तरीके से समझेगा, तो वो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, वो एरर क्रिएट करेगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर एसेंशियल कम्युनिकेशन इज कि आपका मैसेज, आपका जो भी आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। देन कर्टियस का मीनिंग है यू शुड बी काइंड इनफ। आप अगर सामने वाले से बात कर रहे हो तो आपको उसका पोजीशन समझ के बात करना है। दैट इज जनरली कॉल्ड एज एम्पैथी। You should try to put your leg in his shoes and then you should talk to him. You should be very polite, you should be very kind, and then you should communicate with that particular receiver. तो that is going to give a effective way of communication. तो courteous का meaning क्या है कि आप अगर किसी के साथ communicate कर रहे हो तो सामने वाले की place को समझो, सामने वाले की जगह को समझो, and then you should try to communicate with that particular person. तो आप effective way में communicate करना चाहते हैं। जनरली यू कैन सी दैट कि जो मूवी के सेलिब्रिटीज होते हैं तो उनके दिमाग में एक प्राउडनेस आ जाता है, तो वो
अपनी बात दे आर नॉट कर्टियस इन दैट कम्युनिकेशन, वो हार्श मैनर में बात करते हो, तो वो एक फिर वो सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ यू वांट टू बी गिव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू द अदर पार्टी, अगर आप सामने वाले पार्टी के ऊपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डालना चाहते हो या आपकी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस इज कि यू शुड बी वेरी पोलाइट, यू शुड बी वेरी कर्टियस, यू शुड बी वेरी काइंड, एंड देन you should communicate, so that communication will be very effective communication. Then next is listening for understanding. रिसीवर के पार्ट से भी क्या बोला गया है कि अगर सेंडर कोई चीज कम्युनिकेट कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि जो लिसनर्स होते हैं वो प्री जज कर लेते हैं सामने वाले को उसके स्टाइल पे। मैंने आपको बोला कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपीयरेंस इज ऑल्सो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो सामने वाले के अपीयरेंस के बेसिस पे आप उसका जजमेंट निकाल लेते हो और आप उसको उस तरीके से जज करते हो। या फिर देयर इज अ चाइनीज विस्पर, अगर आपने एक पर्टिकुलर पर्सन की बात, किसी ने आपको किसी की बात पहुंचाई कि वो बंदा जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, और उसकी बात सुन के अगर आप उसके क्लास में बैठते हो तो आप उसी तरीके से उसको जज करोगे कि ये दो ही इज वेरी इफेक्टिव इन हिज कम्युनिकेशन स्टाइल, whatever message he want to put forth, वो इफेक्टिवली उसको पुट फोर्थ कर रहा है, लेकिन आपने आपके माइंडसेट को बना लिया है कि आप उसकी बात को नहीं सुनोगे, यू आर नॉट लिसनिंग, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अ करेक्ट कम्युनिकेशन, वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। तो वो जो भी बात बोल रहा है अगर आप उसको पूरी तरीके से बराबर नहीं सुनते हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू प्रॉपरली कम्युनिकेट विद दैट। तो लिसनिंग का भाग भी आता है। तो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का क्या है कि आप बराबर सामने वाले की बात को सुनो और समझो, देन ओनली यू विल बी एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट। अगर आपकी बात को मुझे रिप्लाई देना है तो मुझे आपकी बात को बराबर तरीके से समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको कम्युनिकेट आपके साथ इफेक्टिवली कर सकता हूं। अगर मैं आपकी बात सुनता ही नहीं हूं तो समझूंगा कैसा, अगर सुनूंगा ही नहीं तो समझूंगा कैसा। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मैं आपकी बात को बराबर तरीके से सुनूं, समझूं और फिर आपको रिप्लाई दूं, कम्युनिकेट करूं, तो दैट विल बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फोकस एंड अटेंशन, अगर सामने वाला बोल रहा है तो यू शुड वेरी फोकसिंग, आप आपके ही बातों में अगर लगे हो, आप उसको फोकस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अटेंटिव, देन इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप उसको रिप्लाई बराबर नहीं दे सकते हो, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको अटेंशन देना, यू शुड बी वेरी अटेंटिव व्हेन समवन इज आई मीन समवन आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, कुछ आपको आपसे बात कर रहा है, तो what is very very important for you is you should be very focused and attentive। आप चार चीजें सोच रहे हो और उससे बात कर रहे हो या वो आपसे बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आप फोकस नहीं हो, आप उसको अटेंटिव नहीं हो, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू दैट विल नॉट हेल्प यू आउट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इमोशनल एंड अवेयरनेस, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। नाउ इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि काइंड हार्टेड, whenever you communicate with someone you should be very kind hearted, you should try to picturize the emotion, that means you should try to understand the emotions about the other party। आपको सामने वाले के emotions को understand करना पड़ेगा, आपको उसका माइंड रीड करना पड़ेगा कि वो सामने वाला जो है वो क्या सोच रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आपको कम्युनिकेट, दैट विल बी जो अपन बोलते हैं ना जनरली सिक्स्थ सेंस। तो ये सिक्स्थ सेंस इज नथिंग बट इमोशनल अवेयरनेस। तो अगर सामने वाले की अपीयरेंस से, सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज से अगर आपको समझ में आ जा रहा है कि सामने वाला क्या सोच रहा है और आपको उसको कौन सा मैसेज पहुंचाना है, आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, सामने वाला जो सोच रहा है अगर वही बात आपने उसके साथ कर ली, तो दैट विल बी अ बेस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो दैट इज व्हाट यू हैव अंडर इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। तो these are effective way of communication. So what are the characteristics? Once again we'll revise. Clear,
क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी आप बात रख रहे हो उसमें आप क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइजनेस होना चाहिए, प्रिसाइजनेस होना चाहिए, ब्रेविटी होना चाहिए, अननेसेसरी लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्साइज। कॉन्क्रीट का मीनिंग क्या है कि यू हैव टू यूज द फैक्ट्स एंड फिगर इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अगर आप आपके मैसेज के साथ साथ फैक्ट्स और फिगर्स यूज करते हो तो दैट विल बी अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। देन यू हैव कोहेरेंट, कनेक्शन होना चाहिए आपके वर्ड्स में, आपके सेंटेंसेस में, आपके पैराग्राफ्स में एक दूसरे का बराबर कोहेरेंस कनेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं होना चाहिए। अगर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड नहीं है तो उस सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कि आप बात कर रहे हो कुछ और एग्जाम्पल कुछ और चीज का दे रहे हो, तो वहां पे कोहेरेंट नहीं है, वो इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं चाहिए। जो भी मैसेज आप देना चाहते हो पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, तो नहीं तो देयर विल बी एन एरर। देन कर्टियस होना चाहिए, यू शुड बी काइंड हार्टेड, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू शुड प्रॉपरली लिसन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रॉपरली लिसन। फोकस एंड अटेंटिव होना चाहिए, यू शुड नॉट बी वो बोल रहा है, आप कुछ दुनिया आपकी कुछ और ही है, आप कुछ और ही चीज को सोच रहे हो, तो दैट इज नॉट फोकस एंड अटेंटिव। तो यू शुड बी फोकस एंड अटेंटिव इन ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर रिप्लाई। एंड इन द लास्ट मैनर इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल होना चाहिए। इमोशनल अवेयरनेस, आई टोल्ड यू दैट यू शुड बी एबल टू रीड द माइंड ऑफ, कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। नाउ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर्स यानी कौन कौन सी चीजें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में आ जाती है, उसको इनइफेक्टिव किस तरीके से कर देती है, यानी कौन कौन सी चीजें हर्डल बनती है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दैट्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। फर्स्ट वन इज यू हैव अ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में यू कैन सी टू इट दैट फर्स्ट विल जस्ट गो थ्रू ऑल दिस। First you have a physical barrier, then you have a cultural barrier, physiological barrier, organizational structure barrier, emotional and attitude barrier, you have your technology barriers, you have language barriers, you have perception barriers, you have genders barriers. So these are the different barriers you have. Now first one is a physical barrier. Physical barrier यानी noises अगर है या फिर टेक्नोलॉजी बराबर नहीं है तो वो आपके कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बना देगा। अगर नॉइज चल रहा है, आप कोई चीज को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो लेकिन सामने इतना डिस्टरबेंस है, इतने नॉइजेस है, या फिर आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सफिशिएंट इनफ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल बैरियर। तो अगर फिजिकल बैरियर अगर है तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। फिजिकल बैरियर में व्हाट वी हैव सीन, फिजिकल बैरियर्स देयर इज अ नॉइज, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपर, या फिर आपका टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग। तो ऑल दिस इज अ हर्डल फॉर अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सच बैरियर इज कॉल्ड एज अ फिजिकल बैरियर। देन यू हैव अ कल्चर बैरियर. Culture barrier India is you generally call as unity in diversity. So there are n number of culture. If one person doesn't respect the alien culture, सामने वाले के कल्चर को अगर समझने की कोशिश नहीं करेगा या सामने वाले के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो then that is going to create a hurdle, that is going to create a barrier. अगर कोई बोलता है कि my culture is very very important एंड अदर कल्चर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, सामने वाले के रिलीजन को अगर वो ड्यू रिस्पेक्ट अगर नहीं देता है, वो बोलता है कि माई रिलीजियस इज मेरा रिलीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छा है, और वो दूसरे रिलीजन को अगर रिस्पेक्ट नहीं देता है, दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो देन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ हर्डल. तो दैट इज कॉल्ड एज अ कल्चरल बैरियर. Then you have a physiological barrier. Physiological barrier is like फिजिकली चैलेंज अगर कोई है, किसी को सुनने की ताकत नहीं है, यानी सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर. तो ये भी एक बैरियर है कि सामने वाले पर्सन को अगर कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, यानी
ही हैज अ नाइट ब्लाइंडनेस और सम काइंड ऑफ ए ब्लाइंडनेस, उसकी आंखें अगर बराबर नहीं है या सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनने में अगर प्रॉब्लम है, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ बैरियर एंड सच बैरियर इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर का मीनिंग क्या है कि व्हेन चेन ऑफ कमांड इज अनक्लियर, कि किसको रिपोर्टिंग करना है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा या सामने वाला सुपीरियर किसको आगे रिपोर्ट करेगा, ये अनक्लियर है। ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क इज नॉट प्रॉपर, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। कि अगर किसको पता ही नहीं है कि मुझे किसको रिपोर्टिंग करना है, ये अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन मैं किसको जाके दूं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लियर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देन देयर इज अ इमोशनल एंड एटीट्यूड बैरियर। इमोशनल एंड एटीट्यूड बैरियर का मीनिंग क्या है कि एंगर, जेलेसी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए बैरियर। कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू हैव अ जेलसी, तो आप उसके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। यू विल ट्राई टू पुल द लेग ऑफ अदर और द अदर वन इज गोइंग टू पुल योर लेग and just to he should not get promoted. This is a kind of a jealousy, or there is a kind of a anger, or there is an anxiety among each other. तो ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है। तो सच बैरियर इज कॉल्ड एज अ इमोशनल बैरियर, कि सामने वाले से आप बात क्यों नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज यू आर जेलस ऑफ हिम, आप उसको पसंद नहीं करते हो तो उस वजह से आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक बैरियर है। सच बैरियर्स आर कॉल्ड एज अ इमोशनल और एटीट्यूड बैरियर। देन यू हैव अ टेक्नोलॉजी बैरियर। टेक्नोलॉजी बैरियर का मीनिंग क्या है कि नॉन फैमिलियर विथ रीसेंट टेक्नोलॉजी। आप अगर रीसेंट टेक्नोलॉजी के साथ यू आर नॉट अवेयर, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट एन हर्डल। जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे कि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो इज वर्क फ्रॉम होम। अगर आप जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर जनरेट कर रहे हैं, तो अगर ऑनलाइन लेक्चर्स की टेक्नोलॉजी हमको पता नहीं है, वी आर नॉट अवेयर विथ हाउ टू शूट, हाउ टू पुट आवर मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट, तो ये एक बैरियर क्रिएट करेगा। वी विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट। तो सच काइंड ऑफ ए बैरियर इज कॉल्ड एज अ टेक्नोलॉजी बैरियर। Then there is a language barrier. There are different people with different language, और एक particular word का अलग अलग language में अलग अलग meaning निकलता है, और एक ही particular word एक particular person एक तरीके से बोलता है और दूसरा वही word को दूसरे तरीके से बोलता है। जैसे कि M, अगर मैं एक एग्जाम्पल एक अल्फाबेट को लूँ M, तो साउथ के लोग जनरली M को यम बोलते हैं और W को they will call it W. That is different way of speaking. तो लैंग्वेज अलग अलग है। अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई नो ओनली हिंदी एंड यू आर अवेयर विथ ओनली इंग्लिश एंड आई एम नॉट अवेयर, जैसे कि जनरली लैंग्वेज बैरियर का आता है इन द केस व्हेन यू गो टू तमिलनाडु। वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी गो फॉर एन ऑडिट, तो लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर फॉर कम्युनिकेशन. If you want to go from one place to another, it's not possible to communicate because there is a language barrier. We know only English or Hindi. That particular person is aware only with Tamil. तो he cannot speak to us. हम उनकी बात को उनकी बात नहीं समझ सकते, वो हमारी बात नहीं समझ सकते हो. तो such kind of that is going to create a communication problem, and that communication problem is on account of language barrier. Then there is a perception barrier, यानी एक चीज को देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है. एक ही चीज को दो डिफरेंट पीपल विल लुक इन अ डिफरेंट मैनर, और फिर वो एक बैरियर क्रिएट करता है. जनरली अपन बोलते हैं कि एक, जैसे कि अभी पॉलिटिक्स के अंदर होता है, देयर आर डिफरेंट पार्टीज. अगर वो बीजेपी को मैं लाइक नहीं करता हूँ, या फिर मैं सिर्फ बीजेपी को लाइक करता हूँ, दूसरे पार्टीज को नहीं लाइक करता हूँ, या फिर सम इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन ऑन फेसबुक वो मैं पॉजिटिव मैनर में लेता हूँ और वही चीज को दूसरा नेगेटिव मैनर में लेता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ परसेप्शन बैरियर. यानी एक चीज को देखने का नजरिया अलग लोगों का अलग अलग तरीका का रहता है, और अगर कोई पर्सन उसको पॉजिटिवली लेता है और कोई उसको नेगेटिवली लेता है, तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है उनके कम्युनिकेशन के. देन देयर इज अ जेंडर बैरियर. men women in an organization, generally men does not like to take a command from the woman female boss.
मेल एम्प्लॉय को जनरली दे दो, अगर ऑर्थोडॉक्स नेचर का कोई मेल मेंबर है या फिर ट्रेडिशनल कोई एम्प्लॉय है तो उसको फीमेल बॉस है तो उससे कमांड लेने अच्छा नहीं लगता है। या फिर जनरली इट इज सेड दैट के मेल आर जनरली लॉजिकल इन दैट थिंकिंग एंड फीमेल आर जनरली वर्बोस, यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है जब जरूरत नहीं है। तो देन इट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल फील्स दैट के अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फीमेल उसको दे रहा है, फीमेल को लगता है कि मेल बहुत कम इंफॉर्मेशन उसको दे रहा है जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता और लॉजिकल इंफॉर्मेशन देता है मेल। तो यहाँ मेल और फीमेल के बीच में इट्स क्रिएट अ बैरियर एंड दैट बैरियर इज कॉल्ड एज अ जेंडर बैरियर। तो दिस इज ऑल अबाउट अ कम्युनिकेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, and even if you have any doubt, please ping me. Bye everyone.